In the last lecture, we had learned about the method of joints for truss analysis. And in today's lecture, we are going to learn method of sections for truss analysis. The purpose is the same. What is the purpose? For example, let us take a truss as shown in this problem. This is the first problem that we will be discussing using the method of sections. In this problem, let us first understand what are the kinds of supports that are given on the truss. See, here you have got a roller support, and as everybody of you must be already knowing by now, roller supports are capable of delivering only vertical reactions. They are incapable of developing horizontal reactions. There is another support at point G, but this is a simple pin support or pin joint. And pin joints will react to the type of force that is being applied. For example, let me make a simpler truss, a simple triangular truss. There is a pin jointed support here, pin jointed support here. And to show the supports, I draw a little triangle like this. And then I draw a shading like this. Whenever you see an image like this, you have to assume it to be a support. So I am giving another support here. Again, a simple pin jointed support. And at this joint, I apply a vertically downward force of, let us say, 2 Newton. Now I want any one of you who is confident to tell me how many reaction components will be developed in this example. Don't look at this example now, we will discuss it later. I just want to know how many of you have your concepts clear regarding the reactions. Only one vertical load is acting on this truss. This is a very simple truss containing 3 members and 3 joints, and 2 supports, let us say support at point A and support at point B are given, and both the supports are simple pin jointed supports. There are no rollers. I want you to carefully look at this truss and tell me how many reaction components should I have to consider for this problem. Anybody now? Four, sir. 4 is unfortunately the wrong answer. Why is it wrong? Because you are considering the fact that a pin jointed support can deliver a horizontal reaction and a vertical reaction. It is not compulsory that in every case it will develop a horizontal reaction. The pin joint will respond to the type of force that you are applying. See, if the external force that you are applying is only purely vertical in direction, then where is the horizontal component going to come from? अगर और थोड़ा सिंपल मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, भाई आपने जो फोर्स लगाई है उसी का ही तो रिएक्शन आएगा ए और बी पे, और अगर आपकी फोर्स का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही नहीं है तो ए और बी दोनों में से किसी पर भी कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का कंपोनेंट क्यों आएगा? This is the question that you have to answer whenever you look at an image. So the correct answer to this question is, once again I will repeat the question, if a purely vertical load, external load of 2 Newton is applied on this truss, how many reaction components should I have to consider for this problem? यानी मुझे इस problem में कितने reaction components को consider करना पड़ेगा? सिर्फ 2, and both of them will be purely vertical, despite the fact that both the supports are pin supports, pin jointed supports होने के बावजूद pin jointed supports horizontal reaction produce कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी हर प्रॉब्लम में इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आएंगी. जैसे इस केस में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ ही नहीं सकती. There is no possibility of a horizontal reaction because the external loading
does not contain any horizontal component. Now, let me change the problem, and instead of a purely vertical load, I apply an inclined load. Which is, let us say, making an angle of 60 degree with the horizontal. Now tell me, how many reactions should I expect at the supports? 4. Now 4 is the correct answer, because the applied load itself has a horizontal component. So if the applied load has a horizontal component, only then the reactions would be expected to generate a horizontal reaction component. Okay, now another tricky question. Think very well before answering. Same truss, but this time I am applying a pure horizontal force. Let us say 4 Newton. It could be any magnitude, but the thing is that the force applied externally on the truss is exactly 4 Newton in the horizontal direction. Now tell me, how many reaction components should I expect? 4. 4. Is your answer 4 or 2? 4. Sir, 2, sir. 2 is the correct answer. See, Sir, great. the logic will be extended in the horizontal direction also. See, the logic is, if I apply a purely horizontal force which does not have a vertical component, then where will the two reactions generate vertical reactions? जब मैंने ऐसी फोर्स लगाई है जिसका कि कोई वर्टिकल कंपोनेंट ही नहीं है, तो मेरी जो रिएक्शन जो सपोर्ट्स पे जनरेट होगी उसमें वर्टिकल रिएक्शन कहां से आ पाएगा? This is the question. So in this case, the reaction at A will be purely horizontal towards the left, and reaction at B will also be purely horizontal towards the left. This is the correct answer. ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है, then the concept of the types of supports and the types of reactions is very clear. ये चीज समझ में आ गई क्या आपको? In this case, there will be only two reactions again, and both the reactions will be in the horizontally opposite direction. No vertical reactions will be developed. Why would there be no vertical reactions? Because the applied force is 4 Newton in the horizontal direction purely. There is no vertical component to the applied force. तो रिएक्शन जो है, एक चीज याद रखना है आपसे, आपको रिएक्शन हमेशा इस बात पे निर्भर करेगी कि आपकी एक्सटर्नल फोर्स किस प्रकार की है. एक्सटर्नल फोर्स प्योरली वर्टिकल है तो किसी भी सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा, चाहे वो कैसी भी सपोर्ट हो. अगर आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस सारी प्योरली हॉरिजॉन्टल है तो आपकी किसी भी सपोर्ट पे वर्टिकल रिएक्शन नहीं आएगा, चाहे वो कैसी भी सपोर्ट्स हो. और अगर आपकी अप्लाइड फोर्सेस इंक्लाइंड हैं, इस तरह से हैं, तो उस केस में आपके सपोर्ट्स पे दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शंस आने की गुंजाइश है. लेकिन अब फिर आगे चल के आपको यह भी देखना पड़ेगा कि सपोर्ट किस टाइप का है. अगर सपोर्ट रोलर है तो इंक्लाइंड फोर्स लगाने के बावजूद भी उस पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही आ सकता है, क्योंकि रोलर सपोर्ट हॉरिजॉन्टली अप्लाइड फोर्स का जो रिएक्शन कंपोनेंट इसमें डेवलप होने की कोशिश होगी उस चीज को नलिफाई कर देगा, क्योंकि रोलर सपोर्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो जाता है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं हो पाता. So roller supports will always develop vertical reactions only, irrespective of the fact whether you are applying horizontal forces, vertical forces, or inclined forces. Pin joints or simple supports which are made of pin joints are capable of developing both horizontal and vertical reactions, but which of these two components will be generated at the support will depend on the type of force that you are applying. अगर आपने प्योरली वर्टिकल फोर्स लगाई तो इस पिन जॉइंट पे सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएगा. अगर आपने प्योरली हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई ट्रस पे तो आपके पिन जॉइंट पे प्योरली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, वर्टिकल नहीं आएगा. और अगर आपने इंक्लाइंड फोर्स लगाई ट्रस पे तो आपके पिन जॉइंट पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स रिएक्शन के डेवलप होंगे.
Is this concept clear to you? Yes, sir. Okay, now we are ready to move on. Method of sections for truss analysis. Truss की analysis करने का क्या मतलब है? In the last class, you studied method of joints for truss analysis. Now you are studying method of sections for truss analysis. Analysis किसी चीज का करते हैं तो basic objective यही होता है कि you are trying to find out some unknown quantities in the object of interest. तो आपका object of interest अभी है truss. तो ट्रस की एनालिसिस करके आपको क्या पता चलेगा? ट्रस की एनालिसिस करके ट्रस के अंदर की अननोन फोर्सेस पता लगेंगी. अब जैसे कि ये ट्रस है, लुक एट दिस ट्रस, इसमें कौन सी अननोन फोर्सेस हैं? ऑब्वियसली, अच्छा ये बताओ, इसमें एक सपोर्ट तो ये रहा, दिस इज अ रोलर सपोर्ट, एक सपोर्ट ये रहा, दिस इज अ पिन जॉइंटेड सपोर्ट. लुक एट द अप्लाइड फोर्सेस एंड टेल मी हाउ मेनी रिएक्शंस आर एक्सपेक्टेड, हाउ मेनी रिएक्शन कंपोनेंट्स आर एक्सपेक्टेड. दो Two, जगह sir. पे Two. कितने मिलेंगे? Two. Two reactions will be there. Since all the forces are purely vertically acting downwards, so the reaction components will be purely vertically upwards. There will be no horizontal component. Reaction at G will be purely vertically upwards, and reaction at C will also be purely vertically upwards. Okay? Okay. So what are the unknown forces in this truss? Obviously, the reaction at C and reaction at G are two unknown forces. But these two unknown forces, the reactions can be simply found out by applying the equations of equilibrium on the truss itself. You don't have to apply a method of sections and method of joints or anything. Any additional method is not required. When is it not required? When you simply want to find RC and RG and do away with the problem. बस बोलो कि हमें सिर्फ RC और RG ही पता करनी ही थी, तो आपको ट्रस की एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है. You can simply apply the three equations of equilibrium, that summation of all horizontal forces on this truss body will be equal to 0. The summation of all vertical forces acting on the truss body will be equal to 0, and the summation of all moments taken about any point of your interest in this plane, in this whole plane. उसमें ट्रस पे भी किसी पॉइंट पे लेने की जरूरत नहीं है. यू कैन टेक एनी एक्सटर्नल पॉइंट ऑल्सो. बोलो कि मैं इस पॉइंट के अबाउट इन सारे फोर्सेस के मोमेंट लूंगा, and you can equate it to 0 because the body is not moving, there is no rotation, so the sum of moments must be 0. There is no vertical motion of the truss, so the sum of vertical forces must be 0. There is no horizontal motion of the truss, therefore the sum of horizontal forces must be 0. So these are the three universal equations which you can apply on any body in equilibrium. ये सिर्फ ट्रस के लिए ही नहीं, इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु पर जो कि इक्विलिब्रियम में है उस पे ये तीनों अप्लाई की जा सकती हैं. These are the universal three principles of engineering mechanics which can be applied on any body which is found to be in equilibrium. बस इक्विलिब्रियम में होना चाहिए वो, तब ये तीनों लगेंगी. ऐसे नहीं कि कोई कार एक्सेलरेट कर रही है उस पे भी लगा दिया समेशन FH0 समेशन FV0. नो, in that case it will not be applicable. अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है उसका साफ मतलब है कि उस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, और अगर रिजल्टेंट फोर्स लग रही है तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 कैसे हो सकती है? देयर इज अ रिजल्टेंट. So the presence of a resultant force indicates that the body is not in equilibrium. The presence of a resultant force equal to 0 indicates that the body is in equilibrium. अगर resultant force 0 है तो equilibrium पे है, और अगर equilibrium पे है तो तीन equilibrium की जो equations अभी लिखवाई थी यहाँ पे, summation FH, summation FV and summation M equal to 0, they can be applied. So that's all that we have to do. If the truss analysis involves only finding the reactions, then you don't need this method. ये मेथड हमको सीखने की जरूरत ही नहीं है.
तो फिर मेथड ऑफ सेक्शंस लगा करके हम कौन सी एनालिसिस करना चाहते हैं? तो जरूरत किस चीज की है? हमें सिर्फ रिएक्शन को पता करके काम खत्म नहीं करना है. देयर इज समथिंग एडिशनल दैट वी हैव टू फाइंड आउट. नाउ with respect to the last class in which you have learned method of joints, can you tell me what is the additional unknown quantities that you want to find out in this truss apart from the reactions? Reactions के अलावा और कौन सी अननोन चीज इस ट्रस में दिख रही है आपको जो पता करनी है, जिसको कि हम ट्रस एनालिसिस का नाम दे रहे हैं कि भाई ट्रस को हम एनालाइज करेंगे मेथड ऑफ सेक्शंस यूज करके और फिर वो चीज पता करेंगे. ऐसी कौन सी स्पेशल चीज है, जरा बताओ. what else is unknown in this truss? Anybody? So, tensile forces. ठीक है, your answer is partially correct. The absolutely correct answer should be the forces in all the members. भाई इन हर एक मेंबर का इसमें कि भाई तुम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो. रॉड ए बी, व्हाट आर यू एक्सपीरियंसिंग? आर यू एक्सपीरियंसिंग अ टेंसाइल फोर्स और अ कंप्रेसिव फोर्स? क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो? द सेम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑफ रॉड बी सी. व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? आर यू एक्सपीरियंसिंग कंप्रेशन और टेंशन? What is the experience of rod BD, CD? तो इसमें जितने rods लगे हैं उन सब rods के ऊपर या तो purely tensile force लग रही होगी या purely compressive force लग रही होगी. And that is the additional objective from truss analysis. तो truss analysis में reaction पता करना तो सबसे primary काम होता है, ये तो पहले ही कर लेते हैं. अपना main काम तो इन रॉड्स के अंदर की फोर्सेस को पता करना है, जिसको कि अपन इस नाम से जानते हैं. इफ द फोर्स इन रॉड AB इज सपोज्ड टू बी फाउंड आउट, देन वी सिंपली गिव इट अ नेम ऑफ FAB. ये अपन ने पिछली बार मेथड ऑफ जॉइंट्स से किया था इन फोर्सेस को पता करने का काम. प्लीज रिकॉल दैट. बट इन दिस केस नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ सेक्शंस. तो अब देखते हैं कि मेथड ऑफ सेक्शंस मेथड ऑफ जॉइंट्स से कैसे अलग है और कौन से सिचुएशन में आपको मेथड ऑफ जॉइंट्स लगाना बेहतर रहेगा और कौन से सिचुएशन में मेथड ऑफ सेक्शंस लगाना प्रेफरेबल रहेगा. बिकॉज बोथ ऑफ दिस मेथड्स आर डूइंग द सेम जॉब. एक ही काम करते हैं ये. दे हेल्प यू इन फाइंडिंग द फोर्सेस इन इंडिविजुअल मेंबर्स. कौन कौन से दो मेथड्स हैं? मेथड ऑफ जॉइंट्स जो कि पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको, एंड मेथड ऑफ सेक्शंस दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाते हैं कि किस केस में मेथड ऑफ सेक्शंस लगाया जाता है. नाउ लेट अस लुक एट दिस प्रॉब्लम. डिटरमाइन द फोर्सेस इन मेंबर्स BD and CD of the truss shown in figure. Which is BD? This is BD. Which is CD? This is CD. So in this problem, the examiner is not asking for these forces. ये आपसे पूछी ही नहीं गई. Now, if you apply the method of joints, then you will start somewhere at joint A, and you will end up finding the force of rod AB and rod AC. क्यों joint A से शुरू करना पड़ेगा? Because you have to recall what I taught you in the last class in method of joints. You have to start from a joint at which at least one force is known, this one is known, and not more than two forces are unknown. So this is not known and this is not known. If you directly say कि भाई हमें तो BD पे फोर्स पता करनी है और CD पे फोर्स पता करनी है, तो एक काम करो ना, सीधे पॉइंट D पे चलते हैं. Will that do your job? You won't be able to find it. Why? Because one known force is there on point D. That is a good thing. But how many unknown forces are there? 1, 2, 3, 4. So this violates the second condition. The second condition which says that you have to select a joint for analysis at which not more than 2 unknowns are present. तो आपके 4 unknown present है D point पे और 1 known present है, तो D point पे तो analysis शुरू कर ही नहीं सकते. So what will you do? You will have to
forcibly start your analysis at point A only. Now point A analysis will give you the forces on AB and AC first. Then you have to move to point B, because now this force is known on AB, and then you will end up finding the force on this and force on this. And only after the second analysis would you be able to find the first unknown force on BD. And then you will have to move to point C. Still you cannot go to point D, because still at point D there are three unknown forces, which again violates it. So in order to end up finding the forces on BD and CD, you have to apply the method of joints at least 1, 2, 3, 4 times. 4 दफे आप मेथड ऑफ जॉइंट्स लगा के पहले पॉइंट ए से बी पे जाओगे, बी से सी पे जाओगे और सी से डी पे जाओगे, तब जाकर के आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा. और ऑब्जेक्टिव क्या था आपका? योर ऑब्जेक्टिव वाज टू फाइंड आउट these two forces only. So this led to the thinking कि यार कोई आसान तरीका नहीं है क्या? मतलब अपने को पूरे ट्रस में सिर्फ 2 रॉड की फोर्स पता करनी है और आप एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट से तीसरे जॉइंट पे जंप पे लगा रहे जा रहे हो और 15 से 20 आधा घंटा वेस्ट हो रहा है मेथड ऑफ जॉइंट्स पे. This led to the discovery and development of method of sections. So what does method of sections say? Method of sections का अब तरीका अपन सीखते हैं. Now listen very carefully, listen to all the important instructions and all the necessary conditions which are applied on method of sections. सबसे पहले तो ये मेरे को बताओ, what is the meaning of this English word section? And please don't say कि सर हमारा section A है. Part, sir. Sir, specific part. Yes, absolutely correct. I will 100% agree with that. तो जैसे कि अगर मैं आपको एक रॉड देता हूँ, let us start with a simple object. ठीक है, let us start with a rod. There is a rod, and I say that give me the section of the rod. Section means you build an imaginary cutting plane like this. A cutting plane लाओ and you cut the rod vertically like this and separate into 2 sections. अब ये 2 parts में separate हो गई. Why? Because you have cut it into 2 parts yourself. This happens when you bring a section plane. One single rod was cut into 2 parts, part 1 and part 2. And now, using the laws of engineering mechanics, you can separately consider the equilibrium of part 1 and apply the laws of mechanics only on this part. Or, if it is more comfortable to you, you can separately analyze part 2 and find out whatever unknown quantities are there. Now the advantage of splitting or sectioning any given object into 2 parts is that the number of unknowns will be lesser in part 1 compared to the whole object. ये बिल्कुल लॉजिकल सी बात है ना कि भाई जितने अननोन क्वांटिटीज आपको पता करने हैं वो किसी एक टुकड़े में कम होंगी कंपेयर करने अगर अपन पूरी बॉडी के साथ में. तो जैसे इस पूरी बॉडी में बहुत सारे अननोन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unknowns are there. But if you take a half segment of this, जैसे कि मैंने यहां से कट किया इसको, अब देखो इसको, this is a cut applied here. Now the object becomes only this much. अब मैं सिर्फ इतने से पार्ट का एनालिसिस करूं तो मेरे को अननोन क्वांटिटीज मेरी कम हो गई. So this is the first logic behind method of sections. You reduce the number of unknown quantities that have to be found. ठीक है? Section means पार्ट नहीं होता. सेक्शन करने का मतलब टू स्प्लिट. दिस द स्प्लिटिंग प्रोसीजर इज कॉल्ड एज सेक्शनिंग. ठीक है? एंड सेक्शन इज द लाइन, नॉट द पार्ट. तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि ये मेरा सेक्शन नंबर 1 है और ये मेरा सेक्शन नंबर 2 है. दैट वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शंस का क्या लॉजिक है? मेथड ऑफ सेक्शंस का मतलब सेक्शन करना मतलब स्प्लिट करना.
एंड वंस द सेक्शनिंग हैज बीन डन एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे इस बार को सेंटर से सेक्शन किया और इस ट्रस को यहां से सेक्शन किया अपन ने, तो सेक्शन का वर्ड का मतलब तो यही खत्म हो गया. बट वंस द सेक्शनिंग इज डन, व्हाट यू अचीव is two parts of the original body, and individual part should not be called as the left section and the right section. See what I am writing, section line. तो सेक्शन का जो तात्पर्य है वो सिर्फ सेक्शनिंग लाइन से रिलेट होना चाहिए, बॉडी से नहीं, ये और ध्यान रखना. तो अगर आपकी आदत पड़ जाए कि लेफ्ट साइड का सेक्शन ले लेते हैं, राइट साइड का सेक्शन ले लेते हैं, दैट इज रॉन्ग. सेक्शन is this line. This line is the section. Okay. Now once this is clear and the logic and the requirement of method of sections is clear, let us see what we have to do next. ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले जैसे ही आपको कोई ट्रस्ट दे दें और अगर आपसे कोई स्पेसिफिकली ऐसी चीज पूछे कि भाई बीडी और सीडी सिर्फ 2 मेंबर्स में चाहिए, इन सच कंडीशंस योर माइंड शुड क्लिक एंड से, अगर हमको बहुत कम जगहों पर ही फोर्सेस पूछी जा रही है तो मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज नहीं करते अपन. वी विल नॉट यूज मेथड ऑफ जॉइंट्स, क्योंकि मेथड ऑफ जॉइंट्स क्या करेगा, एक एक जॉइंट पे जाकर के सारी फोर्सेस निकालने की कोशिश करेगा. So method of joints is not required here. Now instead of this we will go for method of sections. Okay. अब अगली बात आती है कि सेक्शन लाइन कहां से खींचें. उसका आंसर भी आपके क्वेश्चन के अंदर ही है. They are asking you find the forces in members BD and CD. तो एक यहां पर फोर्स चाहिए, एक यहां पे फोर्स चाहिए. तो अब ये बताओ एक सेक्शन लाइन कैसे खींचे. अच्छा, प्लीज रिमेंबर दैट द सेक्शन लाइन हैज टू कट द कंप्लीट ट्रस बॉडी इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स. मतलब अगर आप ये बोलो कि सर ये बना दी मैंने एक सेक्शन लाइन, बस इतनी सी, दिस इज रॉन्ग. इससे क्या होगा, ये रॉड 2 पार्ट्स में कट जाएगी, लेकिन क्या आपकी ट्रस के 2 टुकड़े हुए? क्या नहीं हुए. तो आपको सेक्शन तो ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि ट्रस के 2 अलग अलग टुकड़े हो जाएं. The whole truss has to be separated into 2 bodies. This is important to remember. Now the thing is, I can draw infinite number of section lines. इसकी मेरे को पूरी आजादी है. मैं एक सेक्शन ऐसा काट सकता हूँ, ये देखो ऐसा काटा तो ये एक टुकड़ा बन जाएगा और बाकी का पूरा ऑब्जेक्ट एक टुकड़ा बन जाएगा. I can do that. This is a permissible section line. I can make a section like this. Again, the body is split into 2 parts. ये वाली पार्ट एक बॉडी बन गई और बाकी की पार्ट एक दूसरी बॉडी बन गई. I can again draw another section like this. I can draw a section like this. I can even draw a section like this. All these are possible. Vertical, horizontal, टेढ़ी line. Even look at the solution. I have taken this problem from a book. उसमें उन्होंने सेक्शन कैसे बनाया है. इट इज नॉट इवन कंपल्सरी फॉर यू टू पुट द सेक्शन लाइन इन अ स्ट्रेट लाइन. इसको स्ट्रेट लाइन बनाना भी जरूरी नहीं है. यू कैन टेक अ कर्व्ड सेक्शन लाइन ऑल्सो. बोलो कि ये ऐसे कर्व में आती हुई एक सेक्शन लाइन ले सकते हैं अपना. अगर ऐसी चीज ले सकते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अनदर सेक्शन लाइन. आप मेरे को देख करके बताना कि जो सेक्शन मैं बना रहा हूं वो सही है या गलत है. I am going to draw a section line like this. Is this a correct section line or not? Please respond. Anybody who is confident. Correct or wrong? बस ये बताना है आपको. करेक्ट है. बिल्कुल करेक्ट है. करेक्ट है सर. बिल्कुल करेक्ट है. Why? Because the only requirement of the section line in the method of sections is that it should split the complete body into exactly 2 parts. 2 से ज्यादा टुकड़े भी नहीं होने चाहिए. अगर आप ये बोलो कि यार अब तो हमें समझ में आ गया, मतलब कैसी भी लाइन खींच दो, it doesn't matter, that is also wrong. If I say that this is my section line, ये गई, ये गई, ये गई, ये सही है क्या?
Look No, at sir. the section line. No, sir. No, sir. This is No, not sir. correct. No, sir. This तीन is part an हो गए. incorrect section line क्योंकि ये कितने टुकड़े क्रिएट करेगा, आपके बॉडी के 3 टुकड़े क्रिएट कर देगा. 3 parts. One part here, another part is this mechanism, and the third part is this. So there will be 3 parts split using this complicated section line. So this is a wrong section line. तो अब आपको सेक्शन लाइन बनाना समझ में आ गया है. ठीक है, अब आपको ये सीखना है कि सेक्शन लाइन किधर से पास करानी चाहिए, इसको देखते हुए कि हमें कहां कहां पे फोर्सेस चाहिए. ठीक है. नाउ देयर आर सम रूल्स फॉर ड्राइंग द सेक्शन आल्सो. आप टेढ़ी मेढ़ी सांप जैसी लाइन भी बना सकते हो. 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है. दैट रूल इज आल्सो क्लियर टू यू. Now the only thing that you need to understand is what are the exact rules. Now I have underlined a very important statement here. The section line should be drawn in such a way that it does not cut more than 3 members in which the forces are unknown. अब इस स्टेटमेंट को गलत इंटरप्रेट मत करिए प्लीज. ये आपसे कतई भी ये नहीं कह रहा कि सेक्शन लाइन 3 से ज्यादा मेंबर्स को कट नहीं करनी चाहिए. नो, ये 3 नहीं 50 मेंबर्स को भी कट कर सकता है. लेकिन कौन से 3 मेंबर्स की बात हो रही है? ये 3 मेंबर्स फिर इसने क्यों कहा है यहाँ पे? ये बोल रहा है कि ऐसी सेक्शन लाइन बनाओ जो जब आपके अनेकों रॉड्स को कट कर देगी, तो उन अनेकों रॉड्स में से कोई से भी ऐसे 3 से ज्यादा रॉड नहीं होने चाहिए जिसपे की फोर्सेस अननोन हो. अब देखते हैं इसका क्या मतलब है. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस वन. ठीक है, एक ट्रस दिख रही है आपको सिंपल सी. मैंने इस पे एक अप्लाइड फोर्स लगाई, लेट अस से 2 न्यूटन. अनदर अप्लाइड फोर्स एट दिस जॉइंट, again let us say 2 Newton. कुछ भी फोर्स लगा दो, doesn't matter. Now this is a complete truss and this is also a force at this joint, let us say 3 Newton. So 3 external forces are there. अभी आपको साफ पता है रिएक्शंस आपकी वर्टिकली होगी क्योंकि all the externally applied forces are vertical. So whether the joint is a roller joint or a pin joint, the net reaction forces will be purely vertical only. Why? Because the applied loads are vertical. तो यहाँ पे रिएक्शन एट ए आ जाएगा, रिएक्शन एट लेट अस सी, ये सी पॉइंट मान लो या कुछ भी मान लो, रिएक्शन एट सी. एंड नाउ हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7. 7 unknowns are there. Okay, and I have been asked to find फोर्स ऑन दिस रॉड ओनली. मेरे से पूछा गया है कि बस सिर्फ इस रॉड की फोर्स निकाल के लिया उस सवाल. तो मैंने बिल्कुल बोला कि ठीक है, जिस रॉड पे फोर्स निकालनी है, ये तो ऑब्वियस से लॉजिक की बात है कि आपका सेक्शन लाइन उस रॉड से तो पास होना ही चाहिए. इफ आई एम आस्किंग यू टू फाइंड द फोर्स ऑन दिस रॉड, इट्स क्वाइट लॉजिकल दैट माय सेक्शन लाइन शुड पास थ्रू दिस रॉड. कैन आई ड्रॉ अ सेक्शन लाइन लाइक दिस? Yes, sir. Yes, sir. No. Yes, sir. I cannot draw a line like this. ये लाइन कितने रॉड्स को कट कर रही है? 4, sir. 4 रॉड्स को कट कर रही है. 4. इन 4 रॉड्स में से कितने रॉड की फोर्सेस आपको पता है? एक की भी नहीं. एक की भी नहीं. So this tenet or the rule has been violated. ये बोल रहा है कि आपने सेक्शन लाइन ऐसी खींची जो कि 4 रॉड्स को कट कर रही है, लेकिन कम से मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 मेंबर ऐसे हो सकते हैं जिसपे अननोन फोर्सेस हो. आपकी 4 रॉड्स ऐसी हैं जिसपे अननोन फोर्सेस हैं, तो आपने 3 मेंबर्स से ज्यादा का रूल वायलेट कर दिया. नाउ आई विल रिपीट द सेम क्वेश्चन विथ an additional information. This is known that this particular rod is developing a tensile force of 3.5 Newton.
ये भी अभी आपके प्रॉब्लम में दे रखी है. So the force on this rod is 3.5 Newton in tension. ये known है अब. And now my objective is to find the forces on these two rods. इन दोनों rods पे मेरे को अब force पता करनी है. क्या अब ये section valid है क्या? Yes, sir. See, again, this section is cutting 4 rods. But how many of the 4 forces is unknown? Only 3. ये नहीं पता, ये नहीं पता और ये नहीं पता. 3 ही तो अननोन फोर्सेस हैं. लेकिन Yes, मैंने sir. उसको कट कर दिया. ये अलाउड है. I can cut 4, 5, 6, 7. I can cut any number of rods with one given section, provided it cuts the whole body into exactly 2 different parts. ठीक है. लेकिन आपकी जितनी रॉड्स कट हो रही हैं उनमें से ज्यादा 3 ही ऐसी होनी चाहिए जिसपे अननोन फोर्सेस हों. 3 से ज्यादा अननोन फोर्सेस अगर आपके सेक्शन के कारण पैदा होती हैं तो फिर वो सेक्शन गलत है, या फिर आप मेथड ऑफ सेक्शंस उस पर लगा करके आंसर नहीं निकाल पाओगे. सो इज इट क्लियर हाउ सेक्शंस आर सपोज्ड टू बी ड्रॉन? क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं होंगे तो जो प्रॉब्लम्स आएगी, आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखोगे और उसके बाद सीधे कोई अनसॉल्व्ड एग्जांपल पे जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज यू डोंट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाउ टू ड्रॉ द सेक्शन. बिकॉज सॉल्व्ड एग्जांपल्स विल बी डायरेक्टली गिविंग यू द आंसर ऑफ हाउ टू ड्रॉ द सेक्शन. वो तो वैसे ही आपको सेक्शन लाइन बना करके दिखा देंगे और आप उसकी मैथमेटिक्स के अंदर खो जाओगे और आपको लगेगा कि यस यस हमने सीख लिया, वी नो हाउ टू मेक द मेथड ऑफ सेक्शंस. But that is absolutely wrong. That is just a figment of your imagination. You should know what is the rule of applying a section and how to draw the section. Okay? Now, again coming to this, BD and CD पे मेरे को forces निकालनी है. तो अब मेरे को आप ये बताओ मैं section line कैसी बनाऊं? BD is this one and CD is this one. Can I draw a section line like this? No, sir. गलत सेक्शन है. क्योंकि अब देखो लॉजिक क्या कहता है कि BD और CD ऐसी एक सेक्शन बनाओ जो कि दोनों को एक साथ कट कर दे. दोनों अननोन फोर्सेस हैं. अब मैं एक नई सेक्शन लाइन बना रहा हूं. प्लीज लुक एट द सेक्शन लाइन एंड टेल मी whether this new section that I am drawing is correct or not. This is unknown. This is unknown. यही पता करनी है. अननोन तो सारी हैं, ये सारी अननोन है, लेकिन पता सिर्फ ये दोनों करनी है अपने को. So what will I do? I'll draw another section line. Let us say. Yes, sir. Right. ये सही है क्या? Yes, sir. No, sir. गलत है सर. गलत है. अच्छा ये बताओ ये वाली सेक्शन लाइन कितने रॉड्स को कट कर रही है? टोटल कितने रॉड्स को कट कर रही है? 5. 5. इनमें से कितनी पता है आपको? एक भी नहीं पता. एक भी नहीं पता. You don't know a single force out of the 5 rods that have been cut. ये अननोन है, ये अननोन है, ये अननोन है, ये अननोन है, ये अननोन है. तो ये सेक्शन तो बिल्कुल ही गलत है. This is absolutely wrong. ठीक है. तो अब आपको क्या करना है? आपको एक नई सेक्शन लाइन बनानी पड़ेगी. अब देखो क्या ये सेक्शन लाइन सही है क्या? यस सर. ये सही क्यों है? Yes, sir. सर 3 फोर्स Three अननोन unknown है है ना सर? और सर 3 इसने 3 ही रॉड्स को कट करी और और कट तीन करते टाइम पूरी बॉडी के 2 टुकड़े भी एग्जैक्टली कर दिए और इस सेक्शन के कटने में वो 2 रॉड्स भी कवर हो गई जिन पे आपको फोर्स पता करनी थी. एक्चुअली BD और CD वो दोनों कवर भी हो गई और टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस कितनी जनरेट कर रहा है? 1, 2 और 3. तो ये आपका रूल भी वायलेट नहीं हुआ कि एक टाइम पे 3 से ज्यादा अननोन फोर्सेस की कटिंग नहीं होनी चाहिए. तो दिस इज हाउ यू जज कि कैसे अपन एक प्रॉपर सेक्शन लाइन बनाते हैं. सो दिस इज द आंसर. इन्होंने एक ऐसे कर्व्ड लाइन बनाई है, इसकी जरूरत ही नहीं है कर्व बनाने की. हाँ कुछ प्रॉब्लम्स में कर्व्ड लाइन बनाने की जरूरत पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कर्व्ड लाइंस भी अलाउड है. बट इन दिस केस अ स्ट्रेट लाइन विल बी मोर देन सफिशिएंट. एक ऐसा स्ट्रेट सेक्शन काट दो. सो नाउ योर बॉडी हैज बीन प्रॉपरली सेक्शनड. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है?
मेथड ऑफ सेक्शंस में आपने सेक्शन लाइन बनाने के सारे नियम सीख लिए हैं, यू आर कॉन्फिडेंट नाउ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अब आपकी बॉडी के दो टुकड़े हो गए। नाउ लेट अस कम टू दिस वन, ठीक है। ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें इन्होंने एक सेक्शन लाइन ए ऐसे खींची है। नाउ योर बॉडी हैज बीन सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। कैन यू सी दिस टू पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब आपकी जो अननोन फोर्सेस थी, लेट अस से द अननोन फोर्सेस that were supposed to be found in this problem were FCE, FDE and FDB, ठीक है। उसी तरीके से FCE, FDE and FDB। तो ये जो तीन फोर्सेस हैं, ये सेक्शन करने के बाद जो दो पार्ट्स क्रिएट हो गए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये तीनों अननोन फोर्सेस दोनों पार्ट्स में दिख रही हैं, ठीक है। लेकिन अब कौन से एक पार्ट का एनालिसिस आप करना पसंद करोगे, इसके बारे में कोई ऐसा नियम फिक्स तो नहीं कर रखा, लेकिन लॉजिक क्या कहता है कि वो वाला पार्ट लो जिसमें टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस, नोन और अननोन सब कुछ मिला करके सबसे कम नंबर ऑफ फोर्सेस जिसमें दिख रही हो, उसका एनालिसिस करो तो जल्दी आंसर मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है, यू कैन फाइंड दीज थ्री अननोन्स by the analysis of section 1 और section 2। इनमें से किसी भी पार्ट के एनालिसिस से आपको ये आंसर अब मिल जाएंगे। लेकिन लॉजिक क्या कहता है, पार्ट 1 में कितने टोटल फोर्सेस हैं, नोन और अननोन सब मिलाकर के, ये बताओ। लुक एट पार्ट 1 एंड टेल मी हाउ मेनी टोटल फोर्सेस आर विजिबल। 1 रिएक्शन एट ए, 2 रिएक्शन एट डी, 3 the first unknown, 4 the second unknown, 5 the third unknown। तो टोटल 5 अननोन फोर्सेस आपको पता करनी है। पार्ट 2 को देखो और ये देखो कि टोटल फोर्सेस कितनी है। फर्स्ट अननोन, सेकंड अननोन, थर्ड अननोन, 3 फोर्सेस हो गई और एक रिएक्शन, टोटल 4 फोर्सेस हो गई। तो पार्ट 1 में 5 फोर्सेस हैं और पार्ट 2 में 4 फोर्सेस हैं। कौन से वाले पार्ट का एनालिसिस आसान रहेगा आपके लिए? पार्ट 2। पार्ट 2 का एनालिसिस आसान रहेगा। हालांकि ये कोई नियम नहीं है, अगर आप चाहो, इफ यू विश, यू कैन ओमिट द एनालिसिस कि कौन से वाले पार्ट में फोर्स ज्यादा है कम है। आपकी जो इच्छा है पार्ट ले लो, ठीक है। बस क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा या 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा है। तो इस पे कोई बंदिश नहीं है। इससे पहले मैंने जो कुछ भी नियम आपको गिनाए हैं उन सब पे बंदिश है कि भाई कटिंग 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जानी चाहिए, ये बंदिश है। कटिंग के टाइम पे 3 अननोन फोर्सेस से ज्यादा फोर्सेस की कटिंग नहीं होनी चाहिए, ये बंदिश है। लेकिन कौन सा पार्ट सेलेक्ट करना है एनालिसिस के लिए, इस पे कोई बंदिश नहीं है। इस पे सिर्फ एक सजेशन है, सिर्फ एक राय है, एक मत है कि भाई वो वाला पार्ट ही लेना जिसमें कम फोर्सेस दिख रही हो, क्योंकि उसमें आपका कम टाइम लगेगा। और अगर आपकी इच्छा नहीं है इस राय को मानने की, तो आप कोई सा भी पार्ट ले सकते हैं। योर आंसर विल नॉट मैटर, आपके आंसर में कोई हेरफेर नहीं होगी। तो यहां तक समझ में आ गया आपको क्या करना है। मेथड ऑफ सेक्शंस में क्या करना होता है, पहले ये देखो कि कौन कौन से रॉड्स में फोर्स मांगी जा रही हो। उसके बाद एक ऐसी सेक्शन लाइन बनाओ जो 3 से ज्यादा अननोन को कट ना करे, और उसमें आपसे पूछी गई जो अननोन फोर्सेस हैं वो उसमें कवर भी हो रही हो। जैसे कि ये वाला अपना एग्जांपल था, इसमें बीडी और सीडी की फोर्स पूछी जा रही है, बाकियों की फोर्स नहीं पूछी जा रही। तो ये सेक्शन प्लेन सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपसे पूछी गई रॉड्स भी कवर हो रही है और टोटल 3 रॉड से ज्यादा कट भी नहीं हो रही। तो ये सबसे बेस्ट सेक्शन लाइन है। अब सेक्शन लाइन लेने के बाद कौन से पार्ट को सिलेक्ट करोगे, ये देखो। एक पार्ट तो ये है, इसमें टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस 1 2 3 4 5 6 फोर्सेस हैं। और इस वाले पार्ट को देखो, इसमें कितनी फोर्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस बार अगर आप देखो तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि भाई कौन सा पार्ट सेलेक्ट कर रहे हो, इट विल नॉट मैटर एट ऑल, ठीक है। तो एनीवे, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम
what we are doing is we are selecting the left side part. अब आगे क्या करना है मेथड ऑफ सेक्शंस में, आपने सेक्शन लाइन लगा दी, एक पार्ट को अलग से निकाल करके भी लिया है, एंड नाउ द लॉजिक और द कोर फिलॉसफी ऑफ मेथड ऑफ सेक्शन सेज कि अगर पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आप एक इमेजिनरी लाइन से उसके दो टुकड़े कर दो तो उसके दोनों टुकड़े भी इक्विलिब्रियम में होंगे इंडिविजुअली। ये लॉजिक है आपके सेक्शन प्लेन्स की मेथड के पीछे। दिस इज द फिलॉसफी बिहाइंड सेक्शन लाइंस। भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा भाई पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना, तो क्या मैं इसकी एक इमेजिनरी टुकड़ा इसमें अगर कंसिडर करूं तो क्या ये टुकड़ा भी इक्विलिब्रियम में नहीं है क्या? बिल्कुल है इक्विलिब्रियम में। जब पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके आप एक या दो टुकड़े नहीं, उसके 1000 टुकड़े करो, हजारों टुकड़े जितने इंडिविजुअल होंगे वो सब के सब भी इक्विलिब्रियम में होंगे। ऑल ऑफ देम मस्ट हैव टू बी इन इक्विलिब्रियम बिकॉज दे आर ऑल इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द सेम बॉडी। तो अब आपने क्या किया, ये बॉडी का एक पार्ट ले लिया, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज ऑल्दो देयर आर फोर्सेस इन AB, BC एंड AC ऑल्सो, भाई इनमें भी तो फोर्सेस हैं, लेकिन इन फोर्सेस को इंटरनल फोर्सेस मानते हुए अब आप अपनी मैथमेटिक्स में लोगे ही नहीं। अब आपके पास कितनी फोर्सेस हैं, ये जो सेक्शन हो गए उन सेक्शन की बाउंड्री पे ये जो कटा हुआ रॉड है उसकी फोर्स ले लो। अच्छा, अब ये एक दूसरा कंफ्यूजन है कि भाई ये आपको किसने बताया कि इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ ही होगा, अननोन है ना ये तो। FBD is unknown, FCD is unknown and FCE is unknown. But how do I know whether it is acting outwards or acting inwards? Again, the answer is you take it in any direction. जो अननोन फोर्सेस हैं उसको आप अपनी इच्छा से किसी भी दिशा में ले लो, और एक बार आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस जब सेटिस्फाई हो जाएगी तो इनकी जो साइंस हैं, अगर FBD का फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आपके द्वारा कंसिडर की गई डायरेक्शन सही है, और FBD का साइन अगर नेगेटिव आता है तो आप इसको उल्टा करके पलट देना, बोल देना कि भाई हमने जो ओरिजिनली अज्यूम किया था आउटवर्ड डायरेक्शन वो आउटवर्ड ना होकर के इनवर्ड था, बस दैट्स इट। एंड नाउ कंसिडरिंग दिस एज अ सिंगुलर बॉडी, अब इस पूरे आर्टिफैक्ट को देखो, ये जो पूरी बॉडी है इसको एक सिंगल आर्टिफैक्ट मानो, और एक ऐसा आर्टिफैक्ट मानो जिसपे एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एक्सटर्नल फोर्सेस इस बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, और इन 6 फोर्सेस का जो वेक्टर सम है या रिजल्टेंट है वो 0 होना चाहिए। रिजल्टेंट 0 क्यों होगा, क्योंकि the whole truss was in equilibrium, so the left part of the truss will also be individually in equilibrium, and these are the external forces acting on the truss parts. अब देखो, अब एक चीज और इसमें प्रॉब्लम आती है कि ये रिएक्शन एट C एक अननोन फोर्स है इसमें। भाई ये 3 तो अननोन फोर्सेस थी ही, लेकिन अब ये रिएक्शन एट C हमें पता होना चाहिए। जब तक ये रिएक्शन एट C अननोन रहेगा तब तक हम अपनी एक्चुअल 3 अननोन फोर्सेस के बारे में जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, द मेथड ऑफ सेक्शंस डिक्टेट्स स्टेप्स ऑफ एनालिसिस मैंने यहाँ आपको दे रखी है, तो इसमें एक हिंट भी दे रखा है। बिफोर आइसोलेटिंग द एप्रोप्रिएट सेक्शन, यानी सेक्शन प्लेन काटने से पहले इट मे फर्स्ट बी नेसेसरी टू डिटरमाइन द ट्रसेस एक्सटर्नल रिएक्शंस। क्योंकि देखो टुकड़ा करने के बाद अब हमारे सामने ये रिएक्शन एक परेशानी बन के खड़ी हो गई है कि भाई हमने ये पूरा एक सेपरेट बॉडी बना लिया, लेकिन अब ये कौन पता करेगा। तो इसीलिए ये क्या हिदायत दी जाती है आपको, व्हाट इज द सजेशन गिवन इन दिस केस, बिफोर कटिंग द सेक्शन, यानी कि यहां तक आने से पहले ही आप अपनी ओरिजिनल इमेज पे आ जाओ। दिस इज द ओरिजिनल इमेज एंड अप्लाई लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन दिस इमेज एंड फाइंड द रिएक्शंस बिफोर हैंड। आप सेक्शन करने से पहले ही जो रिएक्शंस हैं उसको पता करके आ जाओ, उसके बाद सेक्शन करो, तब आपका खेल आसान हो जाएगा। अब इसको कैसे अपन पता करेंगे, इसको आपको क्या चाहिए,
रिएक्शन एट सी चाहिए, रिएक्शन एट जी चाहिए क्या आपको? हालांकि अच्छी बात है अगर आप रिएक्शन एट जी भी निकाल लो, लेकिन आपको ये पता है कि ऑलरेडी आप ये सेक्शन काटने जा रहे हो और उसका लेफ्ट साइड सेलेक्ट करने जा रहे हो, और उस लेफ्ट साइड में रिएक्शन एट जी तो आता ही नहीं है, सिर्फ रिएक्शन एट सी आता है। तो आपको सिर्फ रिएक्शन एट सी पता करना है और कुछ नहीं करना। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं एक छोटी सी ट्रिक लगाऊंगा। मेरे पास कौन सी ट्रिक्स हैं कि अगर मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, देन आई कैन अप्लाई दिस ट्रिक that the summation of horizontal forces is 0, I can apply this trick that the summation of vertical forces is 0, I can apply this trick that the moments about any point in the plane is 0। मैं ये तीनों इक्वेशंस एक साथ लगा सकता हूं, मैं इन तीनों में से कोई एक या दो या तीन अपनी इच्छा से और अपनी लॉजिक से इनको लगा सकता हूं। तो अभी मेरा करंटली ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो, लुक एट द प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिवली वंस अगेन। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं सेक्शन ऐसा काटूं, तो अब मेरे को ये पता है कि ये जो चीज है ये मेरी एक सेपरेट बॉडी बन के बाहर आएगी। दिस पार्ट इज गोइंग टू कम आउट एज अ सेपरेट बॉडी, और मेरे को इसी पे अब इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगानी है। इस पार्ट के अंदर जो भी फोर्स दिख रही है इससे कोई मतलब ही नहीं रहा मेरे को, लेकिन मेरा जो पार्ट है उसमें एक रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन एट सी, और ये नासूर की तरह है एक तरह से। दिस इज अ थॉर्न इन माय आई, कि भाई इस कांटे को पहले से ही पता करके रख लो, क्योंकि ये अननोन फोर्स होनी नहीं चाहिए, ये तो कभी भी कोई भी पता करके रख सकता है, तो अपन इसको अननोन फोर्स की तरह क्यों रखें, क्योंकि बाद में एनालिसिस में ये अननोन रहेगा तो आपकी अननोन फोर्सेस बढ़ रही है बिना मतलब के। सो व्हाट विल आई डू, इस सेक्शन को करने से पहले आई नो दैट समहाउ आई मस्ट गेट द वैल्यू ऑफ रिएक्शन एट पॉइंट सी। तो अब मैं क्या करूंगा, व्हाट इज द ट्रिक दैट आई हैव, मेरे को सिर्फ आर सी चाहिए, आर जी तो चाहिए ही नहीं। मैं समेशन एफ एच नहीं लगाऊंगा, मैं समेशन एफ वी नहीं लगाऊंगा, मैं अब पूरे ट्रस्ट पे लगा रहा हूं। देखो, पहली बात तो है मैं कौन सी चीज लगाऊंगा, मैं सीधे समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट जी लगाऊंगा। अब ये मेरे को कहां से पता लगा कि जी पॉइंट के अबाउट मोमेंट्स लगाना ही सबसे बेस्ट आइडिया है। ये मेरे को इसीलिए पता लगा क्योंकि पॉइंट जी पर जो वर्टिकल रिएक्शन है उस रिएक्शन का मोमेंट 0 हो जाएगा अगर मैं जी के अबाउट मोमेंट्स लेता हूं तो रिएक्शन ऑफ जी मेरे इक्वेशन में आएगी ही नहीं। तो अब देखो, ये फोर्स नोन है, ये फोर्स नोन है, दिस इज नोन, आरसी इज अननोन विच आई वांट टू फाइंड, एंड दिस फोर्स इज आल्सो नोन। तो अगर मैं जी पॉइंट के अबाउट मोमेंट्स लेता हूं तो आर जी जो कि खुद एक अननोन है वो तो इक्वेशन में आएगी ही नहीं। और इक्वेशन में कौन कौन सी फोर्सेस आएगी, ये और ये, जिसमें कि एक ही अननोन है। तो एक सिंगल इक्वेशन से मेरा आर सी का आंसर निकल जाएगा, दैट इज द थिंग। तो अब आप में से कई जने ये भी तर्क कर सकते हैं कि क्या हम किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट मोमेंट नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हो। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि ई पॉइंट के अबाउट मोमेंट्स लेने में क्या प्रॉब्लम है। देखो, ई पॉइंट के अबाउट मोमेंट लूंगा तो आर जी का भी मोमेंट आएगा, क्योंकि अब पॉइंट आर जी पे नहीं है, तो आर जी एक अननोन है, आर सी का भी मोमेंट आएगा और इन नोन फोर्सेस का भी मोमेंट आएगा, और इन सारे मोमेंट्स का सम 0 होगा। द सम ऑफ ऑल मोमेंट्स विल बी 0 बिकॉज द ट्रस इज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन क्या ये मेरे लिए फायदेमंद रहेगी? मेरे इस मोमेंट की इक्वेशन में आर जी भी आ गया और आर सी भी आ गया, और दो अननोन है और एक इक्वेशन है, तो एक सिंगल इक्वेशन से मेरी ये दो अननोन एक साथ तो नहीं निकल सकती, फिर आपको इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन को और यूज करना पड़ेगा। तो उस तरीके से भी कर सकते हो। तो पॉइंट ई के अबाउट मोमेंट लेकर के भी किया जा सकता है, लेकिन आपका आंसर थोड़ा सा और लंबे ड्यूरेशन के बाद निकलेगा, थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत के बाद निकलेगा। इन टर्न सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि मैं पॉइंट जी के अबाउट मोमेंट्स लेकर के काम खत्म कर दूं।
So all I have to do is take moments about point G. That's all. तो अब point G के about moments कैसे लेते हैं? Let us build up an equation and see. ठीक है? Objective क्या था? देखो objective को mind में रखो problem solve करते टाइम. My objective was to create a section like this and to separate this part so that this part can be analyzed and I can find the values of this unknown force and this unknown force. ये मेरा objective है इन तीनों rods की unknown forces. हल actually ये तो चाहिए भी नहीं मेरे को. I don't even want this. I want only BD and CD. That is what is asked in the question. और इसीलिए मैंने काफी दिमाग लगा करके ये section create किया. But the problem is that even after drawing this beautiful section line which gives or which solves all my problems, this reaction at point C remains an unknown quantity which could have been easily found before making the section. Section बनाने से पहले ही मैं इस RC को पता करके यहाँ रख सकता था. तो अब क्या करना है? इस तरह की कभी भी आपको प्रॉब्लम मेथड ऑफ सेक्शंस में मिले तो स्टेप नंबर 1 सेक्शन बनाना नहीं है. स्टेप नंबर 1 क्या है? रिएक्शंस पता करके रख लेना है. ये याद रखिए आप. So step number 1 in method of sections will always be to find all the reactions. आप तो चाहिए तो सारे reactions पहले ही पता करके रख लो, कोई headache ही नहीं होगी. फिर section बनाने के बाद कौन सा चाहिए part, उस part की reaction उसमें पड़ी रहेगी और वो reaction आपको already पता होगा. So this is the logic why we are going to find RC. ठीक है? So let me draw this reaction force RC और मैं पूरे confidence के साथ इसको vertical बना रहा हूँ. पहली बात क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है और अगर ये रोलर नहीं भी होता तो सारी एक्सटर्नल फोर्सेस देखो दे आर ऑल वर्टिकल इन नेचर. तो इसीलिए मेरे को 100% गारंटी है कि इसका रिएक्शन तो वर्टिकल होना ही होना है. तो आरसी मैंने बना दिया. नाउ टेक द मोमेंट्स अबाउट पॉइंट जी. ठीक है? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट जी? मैं क्या करने जा रहा हूं? मेरे को ये करना है, मोमेंट्स लूंगा सारी फोर्सेस की अबाउट पॉइंट जी एंड देन आई विल इक्वेट इट टू 0. इसकी इक्वेशन बना लेते हैं एंड देन वी विल स्टॉप द क्लास टुडे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑफ मेथड ऑफ सेक्शंस इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो. ठीक है? सो प्लीज हेल्प मी आउट इन कंस्ट्रक्टिंग दिस इक्वेशन. पॉइंट जी के अबाउट सारे मोमेंट्स का सम 0 करना है. All I want you to do right now is to tell me the proper signs of the moments. Moment क्या होती है? Force into distance from the point. तो 1 किलो न्यूटन की डिस्टेंस कितनी है G पॉइंट से? Anybody? 6 मीटर 6 मीटर्स है. ठीक है? तो मोमेंट की वैल्यू क्या हो गई? 1 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 6 मीटर्स एंड द यूनिट इज किलो न्यूटन मीटर. तो पहली मोमेंट तो मैंने निकाल ली इस फोर्स की. अब ये बताओ इस मोमेंट का साइन प्लस है या माइनस है? प्लीज अप्लाई द रॉकेट एनालॉजी. मैंने आपको एक धागा बांध के रॉकेट जलाने वाली बात कही थी और उससे ये देखना है कि किस डायरेक्शन में घूम रहा है. अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तब तो पॉजिटिव है और अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेगेटिव है. So tell me what is the sign of this moment about point G? पॉजिटिव. It is positive क्योंकि ये 1 किलो न्यूटन जो है point G के अबाउट ऐसे घूमेगा which is anti clockwise. तो प्लस साइन ले लिया. Now come to this force 0.5 किलो न्यूटन applied at point B. इसकी कितनी डिस्टेंस है पॉइंट G से? पॉइंट G से देखो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करो, प्योर वर्टिकल लाइन, और ये डिस्टेंस नापो. ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? वो डिस्टेंस हो गई आपकी पॉइंट G से B तक की. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस. लुक एट दिस स्टेटमेंट, ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल. ठीक है? तो अगर पॉइंट B से मैं एक वर्टिकल लाइन यहां ड्रॉप करता हूं और अगर ये पूरी लाइन 2 मीटर है तो यहां से लेके यहां तक कितना हुआ? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? 1 मीटर. 1 मीटर. सो 1 + 2 + 2 टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बी फोर्स की G पॉइंट तक? 7 मीटर्स. अरे भाई 7 कैसे हो गया?
Five, One five, sir. Five, sir. plus two plus two. 1 plus 2 plus 2. Five. 5 मीटर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अपन को ये पता लग गया कि this was 1 into 6, this was plus, इस वाले फोर्स की डिस्टेंस 5 मीटर है पॉइंट जी से, तो मैं इधर लिखूंगा 0.5 इंटू 5। अब ये बताओ यहां पे मैं प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं? प्लस। प्लस ही लगेगा। प्लस है कि माइनस है? प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ये देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये जा रही 0.5 की, और अगर यहां से मैं धागा बांध दूं जी पे और इसकी पूंछ पे आग लगा दूं तो ये रॉकेट यों घूमेगा, अगेन एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव मोमेंट। ठीक है, अब इस फोर्स पे आ जाओ। अब इसकी मोमेंट अपने आप बताओ जल्दी से, बिना ज्यादा अपने एक्सप्लेनेशन के। टेल मी द वैल्यू। 0.5 इंटू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी? 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो ये है, 3। ये डिस्टेंस चाहिए अपन को। दिस इज 1, दिस इज 2, सो दिस इज 3। अगेन गिव मी द डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव? प्लस। पॉजिटिव पॉजिटिव। अगेन पॉजिटिव। अब जल्दी से इस वाली फोर्स का मोमेंट बताओ। 1 into 1 into 0.5 into 0.5. 0.5 इंटू पॉजिटिव 0.5। पॉजिटिव 0.5 इंटू 1। तो नोन फोर्सेस के तो सारे मोमेंट आपने ऐड कर लिए। अब एक अननोन फोर्स और है, आरसी। ठीक है, आरसी -4 RC। जी से, आरसी का डिस्टेंस कितना है जी से? 4। 4। सो आरसी मल्टीप्लाइड बाय 4। अब ये पॉजिटिव मोमेंट है कि नेगेटिव मोमेंट है? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। और ये सारी फोर्सेस हो गई, देखो ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया और आरसी ले लिया। तो फुल ट्रस्ट पे आपने सारी फोर्सेस ले ली, और इन सारे मोमेंट्स को जब आप ऐड करेंगे, और ये सारी मोमेंट्स जी के अबाउट ली थी। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्लाइंग मोमेंट अबाउट जी ऑफ ऑल फोर्सेस एडेड टुगेदर इक्वल टू 0 लगाने का मतलब ये है। ये पहली फोर्स का मोमेंट, दूसरी का मोमेंट, तीसरी का मोमेंट, चौथी का मोमेंट, पांचवी का मोमेंट। इन 5 में से एक अननोन फोर्स थी, अपन ने सबका मोमेंट ले लिया जी के अबाउट और इसको इक्वल टू 0 रख दिया। क्या इस इक्वेशन से आपको आरसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा सर। मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग मैं जब भी स्टार्ट करें तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि आप पहले सिर्फ गेस करके रख लो कि मेरे को कौन सा सेक्शन लेना है। तो अपन ने पहले ही ले लिया कि भाई ये वाला पार्ट लेना है, सेक्शन ये कटेगा बाद में। लेकिन इस सेक्शन को काटने से पहले आपने इंटेलिजेंटली गेस कर लिया कि ये रिएक्शन अपन को चाहिए होगी। तो अब आपने सेक्शन काटने से पहले पूरी बॉडी पे एक बार इन 3 इक्वेशंस में से कौन सी लगाने की जरूरत पड़ेगी ये और गेस करना पड़ेगा आपको। समेशन एफ एच इक्वल टू 0, समेशन एफ वी इक्वल टू 0 और समेशन एम इक्वल टू 0। या हो सकता है आपको तीनों यूज करनी पड़ जाए, बट यूजिंग दीज 3 यू विल बी इजीली एबल टू गेट। हाँ सर 11:05 हो गए सर। हाँ, बस अपन आई एम रियली सॉरी फॉर एक्सटेंडिंग दिस, क्योंकि अगर मैं यहाँ छोड़ देता तो ये कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाता। बट दूसरी क्लास अभी चालू होने में है ना सर, इसलिए। हाँ चलो, बस अपन बंद ही कर रहे हैं। मैं एक बार अटेंडेंस और ले लेता हूँ आपकी। प्लीज डोंट गो अवे, आई विल रिफ्रेश द अटेंडेंस एंड देन लीव यू गाइज। सर अमन शर्मा है 22 भी। ओके, अमन शर्मा 22। ठीक है, नाउ यू कैन क्विट द क्लास। अमन शर्मा 23 है क्या? नॉट देयर। जाइए आप लोग नेक्स्ट क्लास में जाइए। Okay, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir.